بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر ہماری ٹیم ایک ایسی جگہ کی طرف جا رہی ہے جہاں شاید ہماری نظر میں یہ سفر ایک چھوٹا سا کام ہو، لیکن کسی ضرورت مند گھرانے کے لیے یہی چھوٹی سی کوشش زندگی کی ایک بہت بڑی آسانی بن سکتی ہے۔ آج ہم ایک ایسے بھائی کے گھر کی طرف جا رہے ہیں جو اپنے گھر کا چولہا چلانے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، کبھی بھیڑوں کو اور کبھی ان کی اون کاٹ کر کام چلاتا ہے۔ چھوٹا موٹا کام ہاتھ آ جائے تو اس کو بھی کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا۔ کبھی دہاڑی کی تلاش میں پورا دن گزر جاتا ہے، آمدنی کا کوئی مستقل ذریعہ نہیں، لیکن اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کے لیے ان کی محنت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ بھائی ان لوگوں میں سے ہیں جو حالات کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے اپنے ہاتھوں سے محنت کرنا پسند کرتے ہیں، حلال کمائی سے اپنے گھر کو چلانے کا انتظام کرتے ہیں۔ تو کیسے ہیں بھائی جی آپ؟ خیریت، ٹھیک ٹھاک جی۔ اچھا بھائی، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ محنت مزدوری کرتا ہوں جی۔ کس طرح کی مزدوری کرتے ہیں آپ؟ جو بھی مل جائے، بیڈا مون لینا جی، اچھا، کوئی جو مزدوری مل جائے وہ کر لینا جی۔ مستری کے ساتھ بھی دیہڑی کر لیتے ہیں؟ مزدوری کریں، مستری نال دیہاڑی چلا جانا۔ اچھا، کسی نے پانی لگوانا ہو، کسی نے دھان لگوانی ہو، کسی نے سپرے کروانا، وہ سب کر لیتے ہیں؟ جی وہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو پہلے آپ کے والد اور والدہ بھی ادھر ہی رہتے تھے؟ جی وہ ادھر رہتے تھے، اسی گھر میں؟ اس گھر میں۔ تو اب ان کی وفات ہو گئی ہے؟ اور میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، اور جو میرا والد صاحب ہے ان کو موروں کا مسئلہ ہے، وہ اب 4 پائی پر ہے۔ برسات کا موسم ہوتا ہے، اس میں تو کافی ساری دیہڑیاں نہیں لگتی، پھر کیا کرتے ہیں؟ بس کیا کریں، اپنا گزارا جو کرنا ہے۔ بارش آ جاتی ہے، یہ موسم خراب ہو جاتا ہے، کبھی دکان پر چلا جانا، کسی کا کام کر لیا، کبھی کسی کا کام کر لیا، اس لیے کچھ پیسے دے دیتے ہیں تو اپنا نظام چلا لیتے ہیں۔ والد صاحب کی مسلسل دوائی بھی آپ لے کے دے رہے ہیں؟ جی ہاں، والد صاحب کی مسلسل دوائی ہم لے کے دے رہے ہیں۔ یہ جو کھجور کا پلر آپ نے بنایا ہوا ہے، یہ تقریباً تقریباً 400-500 سال پہلے یہ رواج تھا پلرز بنانے کا۔ تو جب اس کو دیمک وغیرہ لگ جاتی ہے تو آپ کا تو یہ کمرہ گرنے والا ہو جاتا ہے، پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ یہ اس طرح ابھی یہ بہت کہ نازک ہو چکا ہے، تو اس کو دوبارہ چینج کریں گے، جو مردوں کو لے جائیں گے اور اس کو اوپر سے جائیں گے اور پھر اور لائیں گے، اس طرح کہ اپنا نظام چلا رہے ہیں۔ اس طرح سرمایہ نہیں کہ کوئی لے لیجیے اور کاشت بنا لیجیے۔ جب یہ کھجور کا تنا خراب ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کو ریپلیس کرتے ہیں، نیا کھجور کا تنا یہاں پہ نیا لاتے ہیں جی۔ اچھا، تو یہ تقریباً آپ کو ہر سال کرنا پڑتا ہے؟ ہر سال کرنا پڑتا ہے جی۔ چھت ہے آپ کی اس کمرے کی، وہ بھی کافی ناقص ہے، اور آپ ساری فیملی اس میں رہتے ہیں؟ جی اس میں رہتے ہیں، بارش آتی ہے، یہ اس میں پانی آ جاتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت مصیبت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، کیا کریں، گزارا کرنا ہے۔ دروازہ یہ لکڑی کا بنوایا ہوا ہے، پچھو ٹین لگے جو گھیو والے پیپے ہوتے ہیں نا، انہوں نے کہ پیپے میں آدھے انہوں نے مستری ساتھ گزارا کیا، آپ کہ دروازہ بنایا۔ وہ میرے کو سرمایہ کو نہیں، جب میں گیٹ وغیرہ یا کوئی دروازہ لیا تو نواں لوا لوا، یہ جی پیپے لگے ہوتے ہیں، لکڑی لگے میں اپنے اپنا دروازہ لوایا ہوا اپنے بوے دیکھو۔ وہ بھیڑ منی صبح گیا، بچہ واسطے 200 روپئے انہوں نے میں دیتا ہے، وہ میں لے آتا، چلو بچے کی سبزی وغیرہ کوئی نظام چلے سا جی، میں آج دیہات 200 روپئے بنے۔ آج کے دن کا 200 روپے بنا ہے؟ جی جی آج تو آپ بھیڑ کے اوپر سے اس کی اون کاٹتے ہیں؟ جی ان کی اون کاٹتے ہیں جی۔ تو پھر وہ اون بھی آپ کو دیتے ہیں اور 200 روپیہ بھی دیتے جی ہیں؟ 200 روپیہ دے، کسی نے 200 دیا، کسی نے 50 دے دیا، کسی نے 100 دے دیتا، انہوں نے 200 روپیہ دیتا، کیونکہ پیٹرول ہی ساڑتے گیا کہ نا تسی میں نہ لاؤ تو میں اسے بھیڑ مڑنی ہے تو دکھائی نہ جی، کیوں کرنا مرینا اور مطلب مون تو دکھائی نہ جی جب میں کام کرے نا۔ چلے ہم آپ ساتھ چلتے ہیں اور ہم اپنے دیکھنے والے ناظرین کرام کو بھی دکھاتے ہیں کہ کس طرح ایک بھیڑ کی اون کاٹ کے یہ بھائی جو ہے وہ اپنے بچوں کی پیٹ پالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس پیارے سفر میں، اس نیکی کے سفر میں ہمارے ساتھ رہیں، جتنا بھی ہو سکتا ہے ہمارے چینل کی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آ جائیں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارا یہ بھائی کس طرح محنت کر کے اپنے بچوں کا اور اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جی ناظرین کرام، تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اپنے اس بھائی کے ساتھ آئے ہیں، تو یہاں پر یہ بھیڑ کی اون کاٹنے کا کام کرتے ہیں، جس کے عوض وہ کہہ رہے ہیں کبھی کوئی 50 دیتا ہے، کبھی کوئی 100 دیتا ہے، کبھی 200 دیتا ہے۔ تو ان کا یہ کام تھا، تو ہم ان کے ساتھ مل کر اس فیملی کے گھر پر آئے ہیں تاکہ ہم آپ کو دکھا سکیں کہ یہ لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں، ڈیلی بیسس پر کام جو بھی مل جائے اس کو آر نہیں سمجھتے، شرم محسوس نہیں کرتے، کر لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر وسائل کی بہت زیادہ کمی ہونے کی وجہ سے کافی سارے دن ایسے گزرتے ہیں جب انہیں کوئی کام نہیں ملتا، کوئی دہاڑی نہیں لگتی۔ کبھی کسان کے ساتھ، کبھی کسی مزدوری کے ساتھ جا کر یہ لوگ اپنے پیٹ پالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں آج بھی ہمارا یہ جو بھائی ہے یہاں پر پیڑ کی اون کاٹ رہا ہے اور اس سے اس کو 50 روپیہ 100 روپیہ مل جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے جو بھائی ہیں ان کے یہ بزرگ ہیں، یہ بیمار ہیں، جن کو وہ کہہ رہے ہیں موروں کا مسئلہ ہے۔ ہم ان سے ملتے ہیں اور دیکھیں کہ یہ ہمارے بابا جی جو ہیں بیمار ہیں اور بھائی ان کی مسلسل دوائی کر رہے ہیں، ان کا علاج کروا رہے ہیں۔ بابا جی کیا حال ہے؟ خیر جی، خیر، اللہ خیر رکھنا۔ تو آپ کو کیا بنا؟ مور ہے تو فرق لگا ہے،
2.5 साल हो गया हौल बोल बोल वदा वदा गरीब बंदे आके करीबे जेड़े चवा आप बुढ़ की खिदमत की है बच्चे बड़े कोई दारू नहीं ठोके तो अब आप चल फिर नहीं सकते, नहीं डर सके जी ऐसे ही पड़े रहते हैं। इनने बस दुआ करना चढ़ के और बाहर अच्छे अंदर बस और कुछ नहीं लगा। तो इसके बाबा मुसलसल इलाज नहीं कर रहे? सारे देर से आंदा है भाई इतना हो गया अलग देर देर मसार भाई की जित देर लाके उसी इलाज करे सारी गल होंदी है नसीब ना पैसे ना मोहब्बत उसे मनी ओंदी रजा मनी बैठ ओंदी रजा संभाली बैठ शुक्रों की साथ। यकीन मान इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है क्योंकि इनको मोनों का मसला है और ये उठकर बैठ भी नहीं सकते, बड़ी मुश्किल के साथ ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो प्यारे बहन भाई हम आपसे अपील करते हैं कि इनकी उम्र भी देख लें, सिर्फ़ और सिर्फ इनके पास वसाइल मौजूद नहीं है, पैसे मौजूद नहीं हैं। अगर इनके पास वसाइल मौजूद होते तो कम से कम अच्छे डॉक्टर से अपनी दवाई लेते और जो इनको ज़्यादा तकलीफ़ है दर्द है उसका तो कम से कम आराम रहता। तो प्यारे बहन भाइयों आगे बढ़े और सदका वेलफेयर ट्रस्ट के साथ ताउन करें ताकि इस तरह के जो बुज़ुर्ग हैं हम उनकी खिदमत कर सकें और जन्नत कमा सकें। ये तब मुमकिन होगा जब आप जैसे प्यारे बहन भाई हमें डोनेशन देंगे। अच्छा बाजी, आप इस घर में जब से आपकी शादी होके आई है तब से इस घर में पानी का इंतजाम नहीं है, तो किस तरह से गुजर बसर हो रहा है? बस आमने सामने से गवाड़ियों से पानी भर के इस्तेमाल करेंगे, गुजारा करेंगे जी। अच्छा, तो ये जो अब कपड़े वगैरह धोने होते हैं, बच्चों को नहलाना होता है, क्योंकि आप प्रॉपर बस्ती के अंदर रहती जी हैं, है। तो फिर क्या करती हैं? फिर भी सामने वाले घर से पानी भर के बच्चों को नहला भी लिया, कपड़े भी धो ले। तो वो आसानी से आपको इस्तेमाल करने देते हैं अपना पानी बस वगैरह? कभी करने देते हैं, कभी करते हैं ये खुद लगा लो कि आपके पास नहीं है, बस गुजारा जो करना बच्चों का कर लेते हैं। तो से सानू भाई नलका ही लगा के दे बच्चा थोड़ी मेहरबानी जी, क्योंकि सानू पानी दी बड़ी औख है भाई। असे हुण घर च इस्तेमाल करना होवे जी, भाई मिट्टी लावनी होवे साढ़े को इतना पानी नहीं भाई अस दक ना पानी भर के बड़ा आग लेके ते लेम जोड़ लवी आपने रेंदे तो तुसी पैसा रुपये जैसा जगह जगह ते सहारा दितो है कोठे न तो ता औखा लगता है लकड़ी के साथ जी सहारा किया हुआ है। लकड़ी के साथ साथ आप तो देख वेंदे पाए भाई साड़ी बहुत कमजोर है, जदन बारिश आंदी इतना पानी ज्यादा हो जाता डर लगता बच्चा नहीं बाहर ला के बह वही किसे मोड़ अंदर बह वही। थोड़ी बड़ी मेहरबानी हो सी भाई तुसी कोई साढ़े कान कार सौ गल तो बहुत देसी तो सौखे हो। चलें, अल्लाह ताला बेहतर करे। आप दुआ किया करें कि अल्लाह ताला सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम को इतनी हिम्मत दे, हमारे प्यारे भाई इरफान हुसैन को सेहत सलामती दे कि हम लोग आप जैसे प्यारे बहन भाइयों के लिए जब आप हमसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमसे गुजारिश करते हैं, हमें कहते हैं कि हमारे लिए ये कर दें, आप यकीन माने कि हमारे पास अगर वसाइल मौजूद हों तो इरफान भाई हमेशा कहते हैं हम दिन से रात ना होने दें और आपके लिए आसानी कर दें। बड़ी मेहरबानी तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और हम अपने देखने वाले नाज़रीन कराम से भी गुजारिश करना चाहते हैं कि जितना भी हो सकता है आगे बढ़िए, ऐसी प्यारी बहनों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाइए जो ये आंखों में उम्मीद लिए बैठी हैं कि कोई बहन भाई आगे बढ़ेगा और हमारे लिए एक अच्छा सा कमरा बना देगा। क्योंकि जो भी भाई साहब कमा रहे हैं वो आप लोगों के खाने पीने के लिए वाले साहब की दवाइयों पे इस्तेमाल हो रहा जी है। है। और इतने सालों में कितनी साल हो गए आपकी शादी को? 12-13 साल जी हो गए सारी शादी में। तो 13 साल में आप अपने घर में हैंड पंप नहीं लगवा सके, नहीं जी, कौन तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी बहन जो है वो किन हालात में अपने बच्चों के साथ गुजर बसर कर रही है। तो इंशाल्लाह आज ही जो आपका पानी का मसला है इंशाल्लाह अभी हम अपनी नलके वाली टीम को बुलाते हैं और आपके घर पर एक अच्छा सा हैंड पंप लगवाते हैं। मेहरबानी, अल्लाह खुश रखे सानू जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब इस घर में माँ, बहनें और बच्चे पानी के लिए दूर नहीं जाएंगे। घर के सहन में चंद कदम के फासले पर पानी मौजूद होगा। सुबह उठकर पानी की फिक्र नहीं, बच्चों को पानी लाने के लिए भेजने की मजबूरी नहीं होगी और इस घर की जिंदगी में एक छोटी सी मगर बहुत बड़ी आसानी शामिल होगी है। और ये सब कुछ मुमकिन हुआ है हमारे प्यारे डोनर्स के ताउन से। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, हमेशा उनको अपने करम और फजल के साए में रखे। तो इस हैंड पंप को लगवाने में हमारे साथ ताउन किया है एक ऐसे डोनर हमारे ने जो कि अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि उनका नाम ना लिया जाए। और ये सबील उन्होंने लगवाई है हमारी प्यारी आपी सईदा खान मरहुमा साहिबा
के लिए अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला रफा मकाम अता फरमाए, जन्नत की बहारें नसीब फरमाए, उनकी कब्र को रोशनी और नूर से मुनव्वर फरमाए। माशाल्लाह वो जिंदगी में भी बहुत नेकी की काम करती रही हैं। अल्लाह ताला इस पूरे घराने को हमेशा अपने फजल और करम के साए में रखे। दिल की गहराइयों से इन तमाम बहन भाइयों के शुक्रिया अदा करते हैं जो अपने माल से अल्लाह की रजा के लिए हिस्सा निकालते हैं और हम जरिया बनते हैं कि हम इन लोगों तक पहुंच सकें जिनकी आवाज शायद माशरे के शोर में कहीं दब चुकी है। जिस डोनर ने इस हैंड पंप के लिए तावन किया है या जिसने किसी भी तरह इस नेकी में हिस्सा लिया है, अल्लाह ताला इसके घर में कभी पानी, रिज्क और खुशी और रहमत की कमी न करे, इसकी औलाद को सलामत रखे, इसके वालिदैन पर रहम फरमाए और इसके हर नेक मकसद को कबूल फरमाए। इस बात का हमें बहुत ही दिली दुख है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में ये सबील एक तोहफा के तौर पर पेश फरमाए। यहाँ पर हम हाफिज साहब से दरखास्त करते हैं कि आप हमारी प्यारी आपी सईदा खान साहिबा की कामिल मगफरत के लिए भी दुआ करें और उनकी सारी फैमिली और उनके बच्चों के लिए, उनके बहन भाइयों के लिए, सब के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उन सबको जब सब्र जमील भी अता फरमाए और सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी भी अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लिम अलैहि रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना औ अख्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। या रब्बल आलमीन, मेरी प्यारी बहन सईदा खान साहिबा की कामिल मग़फ़िरत फरमा। रब्बल आलमीन, इस सदका जारिया को अपनी बारगाह नाज़ में कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन, इसका अजर व सवाब मेरी प्यारी बहन सईदा खान साहिबा के नाम अमाल में दर्ज फरमा कर उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला अरफ़ा मकाम नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन, उनकी कब्र को ताहत निगाह वसी व अरीज़ फरमा। या रब्बल आलमीन, प्यारे नबी की शफ़ाअत उस्मा नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन, उनकी कब्र को बुक्का नूर बना अपने रहमतों के फूल अता फरमा। या रब्बल आलमीन, कब्र और आखिरत की मंजिलें आसान फरमा। या इलाहल आलमीन, प्यारे नबी की शफ़ाअत उस्मा नसीब फरमा। प्यारे नबी के हाथों जाम कौसर नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन, मेरी इस प्यारी बहन ने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी नेकियां की, नेक काम किए, सब को अपनी बारगाह नाज़ में कबूल फरमा कर इसका अजर सवाब मेरी इस प्यारी बहन के नाम अमाल में दर्ज फरमा। या रब्बल आलमीन, इन्हें जन्नतुल फिरदौस में सय्यदा तय्यबा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चादर ततहीर का साया अता फरमा। या रब्बल आलमीन, इस सदका जारिया के लिए सदका वेलफेयर ट्रस्ट के साथ जितने बहन भाइयों ने ताउन किया, सब के ताउन को अपनी बारगाह नाज़ में कबूल फरमा। रब्बल आलमीन, सब के कारोबार, माल, जान, रिज़्क़, दीन, ईमान में बरकतें अता फरमा। या रब्बल आलमीन, इनके इल्म, हिल्म, उम्र में मज़ीद बरकतें, रहमतें, वसाअतें अता फरमा। या रब्बल आलमीन, इनकी हर नेक दिली जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमा, नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा, नेक मकासद को पूरा फरमा। या रब्बल आलमीन, इनको शर शैतान से, हासिद के हसद से, बदनज़र की बदनज़री से पनाह अता फरमा। या रब्बल आलमीन, ये फैमिली गहरे दुख में है। या रब्बल आलमीन, ये जो सदमा इन्हें पहुँचा है, रब्बल आलमीन, इनको अजर अज़ीम और सब्र जमील अता फरमा। ली खमसतुन उतफ़ी बिया हर्रिल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा बकार ख़ेश तो हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैर खल्क़िही व कासिम रिज़्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन आमीन बिरहमतिका या रहमान। मैं बड़ा शुक्रगुजार हाँ जिन्होंने भाइयों ने नलका लवाया मैनू घर दे बड़ी तंगी है, पानी की बड़ी मुसीबत होंगी है। मैं अवाड़ गवाड़ वहीदा मूँ उत पानी भरेंदा मूँ, घर का इस्तेमाल करना मूँ। इन्हों का बड़ा शुक्रगुजार हाँ। अल्लाह ताला इन्हों के कारोबार, माल जान बरकत पाए। मैं बड़ा खुश हाँ ते अल्लाह ढेर हो तरक्कियां अता फरमाए। इदा बहन अल्लाह ताला तेरी जन्नत फज़ल आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला तेरी कब्र दे हुजूर पाक दी ज़ियारत पहुंचाओ, शफात नसीब अता फरमाए, कब्र दे साब मन आसान अता फरमाए। मैं बड़ा दिल नाल इन्दा शुक्रगुजार हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर विच पानी मौजूद हो गया है, मैं बड़ा खुश हाँ। अल्लाह ताला सईदा बहन नूं जन्नत फिरदौस आला अरफ़ा मकाम अता फरमाए और लवा के सब्र जमील अजर अज़ीम अता फरमाए। उन्होंने एहसान है साथ है, उन्होंने अल्लाह पाक तरक्की देवे, कारोबार में बरकत देवे, सईदा बहन अल्लाह पाक जन्नत जगह देवे, हजूर पाक की पहचान नसीब अता फरमाए। उन्होंने शुक्रगुजार हाँ जिन्हें सानू ये नलका दिता, पानी दिता वे, उन्होंने बड़ी बड़ी मेहरबानी।
जो दोनों बहन भाई हैं उनके चेहरों पर मुस्कुराहट है, वो खुश हैं कि आज उनके घर पर उनके सहन में साफ पानी का इंतजाम हो गया है। अपने सहन में कपड़े धो रही है और दुआओं में हमारे प्यारे डोनर को याद करी है और हमेशा याद रखेगी जब भी यहाँ से कोई भी बंदा पानी इस्तेमाल करेगा तो हमारे प्यारे डोनर्स को अपनी दुआओं में जरूर याद रखेगा। उसके चेहरे पर जो सुकून है, जो इत्मीनान है, वो नाकाबिले बयान है। ये चीज़ हम बयान ही नहीं कर सकते कि आज माशाल्लाह हमारी ये फैमिली किस कदर खुश है, किस कदर मुतमिन है। अगर आप भी चाहते हैं कि किसी और गरीब के सहन में पानी की ये नेमत पहुँचे तो हमारा साथ ज़रूर दीजिए। हमारे प्यारे भाई इरफान हुसैन के साथ फौरी तौर पर रब्ता कीजिए, क्योंकि कभी कभी हमारी एक छोटी सी कुर्बानी किसी के पूरे घर की ज़िंदगी बदल देती है। तो आइए हमारे साथ मिलकर इस नेकी के सफ़र का हिस्सा बनिए।